کہ ابھی ہم ٹائم لائن دے رہے ہیں سب کو کہ جی اس ٹائم لائن کے اندر اندر جتنے پبلشرز جو بھی اس کریکولم کے ایس این سی کے ساتھ کتابیں بنا رہے ہیں تب تک وہ جمع کروائیں گے. آئی تھنک وہ ڈیٹ آپ کے پاس میرے خیال سے نیکسٹ ویک آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ہم کر رہے کیوں ہیں؟ پلیز میں چاہتا ہوں سب کو یہ بات بڑی کلیئرٹی سے آئے. کئی لوگوں نے اس میں پہلے کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. وی وانٹ ٹو گیو ایکول اپرچونٹی ٹو ایوری ون. اگر کسی نے پہلے کام شروع کر دیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بک اپنی پہلے لے آئے اور سارا بازار اس کی بک سے بھر جائے, پھر باقیوں کو تو موقع نہیں ملا نا. اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں سب کو ایکول ٹائم دیا جائے کہ اگر لیٹس سے منڈے کو ہم کہتے ہیں یا ٹیوزڈے کو whenever کہتے ہیں جی کہ اچھا جی یہ ٹائم لائن ہے کہ اگلے 90 ڈیز کے اندر سب اپنی بکس جمع کروا دیں. ٹھیک ہے جی. اور 120 days whatever it is, I don't know what it is. میں ویسے ہی آپ کو ایک نمبرز دے رہا ہوں. وہ کہنے چلیں جی ایک ہفتے میں اپنی بکس جمع کروا دیں یا ایک سال میں کرا دیں جو بھی. تو اس ٹائم لائن کے اندر سب کی بکس جمع ہو جائیں. ان کو obviously پھر ہمیں ٹائم چاہیے اس کے بعد ان کو اپروو کرنے کا. اپروو کر کے then everybody is on the same page and everybody gets an equal opportunity. That's the only thing in that. اس کے علاوہ اور کوئی پلیز وہ جو کرتے ہیں اسکول ایئر کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں فائنل ایگزامز میں جی جی. دیکھیں اس پہ نہیں اس پہ میں آپ کو یہ اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگست میں نیا شروع کریں. ٹھیک ہے جب اسکول ایئر شروع ہوتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں جلدی شروع کر دینا چاہیے. اس پہ بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مئی میں بھی اس دفعہ ایگزام دیتے ہیں بیکاز آف کرونا ہم نے ایک سال اسکیجول چینج کر دیا تو ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں اس دفعہ دینی نہیں چاہیے. میرے خیال سے 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ہونی چاہیے جب میکسیمم ہیٹ ہوتی ہے اس وقت. باقی ہمیں اسکول پڑھائی شروع کر دینی چاہیے, نیا سال شروع کر دینا چاہیے اور پھر ہمیں واپس اپنے اسکیجول پہ آ جانا چاہیے جو ہمارا پہلے والا تھا. ہاں ریوائز کر. یہ پکی بات نہیں. آپ سوچیں 8 مہینے پہلے چھٹیاں کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم کہیں اچھا جی اب 3 مہینے فائنل ایگزام دے دیے, 3 مہینے جا کے کرنا کیا انہوں نے گھر پہ. سر آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے واقعی پین دی ہے اس بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسکول پر نہیں بالکل. آپ کو پتہ ہے نا جس طرح ابھی آپ نے بات کی تھی انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں I was the first one جس نے in the meeting NCOC کی میڈیا پہ جا کے کہا کہ اگر اسکول بند کرنے تو یہ پارک بھی بند کرے. پتہ نہیں آپ نے سنا تھا کہ نہیں کہ پارک بھی بند کریں. مالز میں 18 سال سے کم کا بچہ نہیں جا سکتا. وہ ID کارڈ دکھائے جس نے جانا. یہ چیزیں دیکھیں آپ. یہ نہیں کہ ایک جتھے کو ادھر سے نکال کے ادھر موو کر دیا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ان دا سینس پلیز آخری چلو کر لیں ریزا سر گو ہیڈ. نہیں let him finish. It's okay. بتاؤ. میرے پاس بڑی پیشنس ہے سوال جواب دینے کی. سر آپ نے انوگریٹ کیا تھا اپنی ڈیجیٹل پورٹل کو جس میں آن لائن لیکچرز ہوتے تھے. ابھی نہیں ہوا. ابھی تو اس پہ کام کریں گے. سر اچھا ہوتا اگر آپ وہ بنا کے جو رجسٹرڈ اسکول آپ کے رجسٹرڈ اسکول ہے اور ایفیلیٹ اسکول ہے جو ایوری ایئر آپ کو ایک سبسڈی بھی پے کرتے ہیں ایفیلیشن اور رجسٹریشن کی, آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ لانچ کر کے دے رہے ہیں, آپ اپنے لاگ ان پاس ورڈ اپنے پیرنٹس کو دیں اور اپنی فی ریکور کریں. تو سر یہ بھی گڈ جسٹر تھا. کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی. سر آپ نے کہا کہ اوپن لیکچرز فار ایوری ون. وہ تو بھی آنا ہے. وہ انصاف اکیڈمی آنی ہے ابھی. جب انصاف اکیڈمی آئے گی تو وہ آپ اسکول آنرز جو ہیں آپ ان کو دیجیے رجسٹرڈ اسکول. ہاں فری ہوں گے. یس سر کہ ہم لاگ ان پاس ورڈ فی ریکور کر کے پیرنٹس کو دیں. ٹھیک ہے. آلرائٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں رضا الرحمان ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ صاحب کا, سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کا اور ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی. اور بہت خوشی ہوئی کہ مراد راز صاحب نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں آج ٹائم بھی دیا اور کچھ ہمارے جو گریونسز تھے اس کا سولوشن پیش کیا. سر تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی وزیر تعلیم آئے نا جی, ہی از دا موسٹ ڈائنامک. نہیں ان کی اپروچ, ان کی سوچ بہت اچھی ہے, بہت ایڈوانس سوچتے ہیں اور بچوں کے لیے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور توفیق دے کہ اس کو بہتر طور پہ مزید بہتر طور پہ کر سکیں. سنگل نیشنل کریکولم پہ جسٹ میں 1 لائنر ایک اپنا دوں گا. سر نے جیسے سمجھا دیا باقی سارا کہ سنگل نیشنل کریکولم کو مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے, کیونکہ ہمارے لیے تو سنگل جو کتاب ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے. الحمدللہ اس کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ جو انہوں نے
عمران خان گورنمنٹ نے جو سنگل نیشنل کریکولم جب بنایا تو اس میں تمام وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو قرآن کریم میں سے ہیں. ایون کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی ڈال دیا گیا ہے. پہلے ہمارے پاس یہ ایکسیس نہیں تھی کہ ہم بچوں کو ترجمہ پڑھائیں, یا اسکول اپنے بیسس کے اوپر کرواتے تھے. جیسے کہ میں بہت سارے اسکولوں کو جانتا ہوں جو اپنے طور پہ بچوں کو ترجمہ پڑھا لیتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ سلیبس کا حصہ بن گیا ہے, اب جتنے بھی بچے ہیں, جیسے کہ اس وقت تقریباً 5 کروڑ بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ ان سب کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا ہے. جب بچے قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے لائف کے بارے میں. اور جیسے ابھی لائف اسکلس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, تو قرآن میں تمام لائف اسکلس باری باری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کی گئی ہیں. تو یہ جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے, اس میں تمام اسکلس ڈال دی گئی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بڑا ایک ایسا اقدام کیا ہے. اس میں سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پی سی ٹی وی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے جو اپنی 7 جنوری کو جو میٹنگ کی ہے اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو جیسے آپ نے بتایا نا کہ سرکل دیں گے, آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی بک بنا سکتے ہیں. انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک بک دیں گے, سنگل بک دیں گے. انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک اسپیکٹرم دیں گے اور اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی بک کوئی بھی چوائس کر لیں. اس میں انہوں نے یہ بھی بات میٹنگ میں بڑی واضح کی ہے کہ ہم کسی بھی پبلشر کو اس سال این او سی نہیں دیں گے, کیونکہ اس سال ہم چاہتے ہیں کہ پی سی ٹی وی کی بک لگائی جائے. اسی پہ سر ہمارا اعتراض تھا, اسی پہ ہماری ریکویسٹ کی آپ سے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ خود دیکھ لیجیے, کیونکہ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ سرکل دیں گے, تو جب آپ سرکل کا آپ خود کہہ رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑا اسپیکٹرم ہے, اس میں بچوں کا لیول فرق ہوتا ہے, پیرنٹس کا لیول فرق ہے, ٹیچرس کا لیول فرق ہے. تو آپ اپنے لیول کے مطابق اس میں سے کوئی بھی بک چوز کر سکتے ہیں. لیکن جب پی سی ٹی وی بک دے گا تو وہ ہمارے لیے مہینے کی. اور سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کا اسکول ہے, وہ لے رہے ہیں 5,000 روپیہ فیس. انہوں نے 50,000 روپیہ جسٹیفائی تو کرنا ہے نا جی, میں 50,000 روپیہ کیوں لے رہا ہوں مہینے کا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے جب وہ اس کتاب کے ساتھ 10 چیزیں بیچ میں اور ڈالیں گے اسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے, اور ساتھ کچھ اور مواد بھی ڈالیں گے اس کو ہیلپ کرنے کا یہ وہ, کیونکہ ہی ہیز ٹو جسٹیفائی کہ جی سب ایس این سی پڑھا رہے ہیں, مگر آپ 50,000 کیوں لے رہے ہیں اور آپ 5,000 کیوں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. سو ہی ول ہیو ٹو, اب وہ بکس ان کو ڈیولپ کرنی پڑیں گی جس کے اندر ایکسٹرا چیزیں ہوں گی اسی کریکولم کے سرکل کے اندر رہتے ہوئے. انہوں نے کہنا جی میں 5,000 لے رہا ہوں تو میں تو ایگزیکٹلی وہی پڑھا رہا ہوں, کیونکہ میجورٹی 5,000 اور کم اسکولوں کے اندر گورنمنٹ کی کتابیں استعمال ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, گورنمنٹ کو ہی وہ فالو کرتے ہیں ایگزیکٹلی. مگر the elite schools, because they have to justify their fee, they will have to create something else. So اس کے اوپر ایبسلیوٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ وہ میں ان سے بات کرتا ہوں, آپ اپنا ریپرزینٹیو مجھے ایک دیں, وی ول کال دم پلیز. ایبسلیوٹلی سر اس میں سر ایک 2-3 گزارشات اور ہیں. سر ایک ایل ڈی اے نے نیا ایکٹ اس دفعہ لینڈ کا ریفارم کا کیا ہے, اس میں انہوں نے 4 کنال کا اسکول فار ہائی سیکشن کے لیے فائنلائز کیا ہے. اور اگر آپ نے پرائمری اسکول کھولنا ہے تو دیٹ وڈ بی 2 کنال, منیمم 2 کنال ایریا. تو سر اگر فرض کیجیے کہ یہ لینڈ ریفارم جو نیا ان کا آیا ہے پورا ایکٹ, یہ اگر وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو چھوٹے اسکول ہیں 1 کنال میں ہیں یا 10 مرلے میں, ان کے لیے مینیج کرنا جو پہلے والے ہیں وہ چلتے رہیں گے, جو آگے انہوں نے بنانے ہی اس کے لیے نہیں. سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, میری اس پہ 2-3 میٹنگس ہو چکی ہیں ان کے ایس ایم عمران صاحب سے, جو اس کو جنہوں نے یہ سارا ایکٹ بنایا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو آپ کے پاس اگر 2 کنال جگہ نہیں ہے تو پھر آپ یا تو اس سے پہلے 2 کنال جگہ پوری کر لیں, ادروائز ہم اس سے چھوٹے اسکول بند کر دیں گے. میں عمران کے ساتھ بیٹھ جاؤں. سر یہ ایکچولی ہم آپ کو نا اپنا سربراہ, یہ والا ذرا لکھ لینا پوائنٹ, میں نے عمران سے بات کرنی ہے. سر ہم آپ کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں. نہیں کوئی سربراہ نہیں ہوں میں, ایسی کوئی بات نہیں, بالکل بھی ڈاکٹر صاحب میں کوئی سربراہ نہیں ہوں, آئی ایم جسٹ اے فرینڈ ہیئر. سو بالکل میں ایک ہی, میں اس طرح کی چیزیں نہیں سمجھتا. ایک اور گزارش یہ تھی, جو پاپیرا کا نیا لا آ رہا ہے سر, وہ آپ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ فری بزنس میکینزم میں نہیں آتی. جیسے میں 1-2 ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں آپ نے جو آپ کی ٹیم ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے اسٹاف کی سیلریز بھی وہ لوگ فائنلائز کریں گے. اس میں یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ کس اسکول کی کتنی فی ہوگی, ہم اس کی تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے. اس میں سر اس طرح کے یعنی مزید بہت سارے پوائنٹس ہیں, لیکن یہ چند پوائنٹس صرف آپ کے نوٹس میں لانے کی
रीजन जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि कोई सैलरी हम आपकी नहीं करेंगे उसके ऊपर। फ़ी के ऊपर ये है कि जितनी आप फ़ी ले रहे हैं आपकी फ़ी का, क्योंकि देखें जिसने 5% तो है ही अलाउ, ठीक है, उससे ऊपर जिसने लेनी है तो वो हमें अपने फाइनेंशियल्स भी दिखाएंगे जी किस वजह से सख्ती हो रही है उनके ऊपर, वो क्यों नहीं अफोर्ड कर सक रहे, और जिसकी जो प्रॉब्लम होगी वो बैठ के टेबल पे हल होगी। मैं समझता हूं कि सारे समझते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल का बड़े खिलाफ हूं, ये वो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हूं कि इसको बिल्कुल बिजनेस ना बना दें, इसको ज़रा थोड़ा तालीमी की तरफ भी रहने दें प्लीज़। आई डोंट वांट इट टू बी मेड एन एब्सोल्यूट बिजनेस। सो उसके लिए अगर किसी ने इंक्रीज़ करनी है वो हमें अपने फाइनेंशियल्स दिखाते हैं कि जी ये देखें हमारे साथ कितनी सख्ती हो रही है, क्योंकि हम नहीं चला सकते एक इदारा, हम उनको बिल्कुल इंक्रीज़ करने देंगे। एवरीथिंग इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ना, ये जो हम प्राइवेट स्कूल्स का एक्ट लेकर आ रहे हैं। अब आप डॉक्टर साहब ये सोचें 1984 से चीज़ अपडेट नहीं की गई, जहालत है कि नहीं है बिल्कुल, कि 84 से एक एक्ट प्राइवेट स्कूल्स का, आई मीन तालीम को तो तरजीह दी नहीं गई ना बिल्कुल इस मुल्क के अंदर, तो तालीम को तो उन्होंने कहा बिल्कुल साइड पर रख दो ताकि हमारा जो जाहिल वोटर है वो जाहिल ही रहे और हमें वो वोट देता रहेगा। सो तालीम को इस दफ़ा पहली दफ़ा होपफुली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रेफरेंस दी जाए, हेल्थ और एजुकेशन को। सो इसलिए आप देखना कि इंशाल्लाह ताला दिस विल बी अ गुड थिंग। सो सर इसमें मेरी गुजारिश ये है कि मैं बेसिकली 5000 से कम फी वाले स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक हो गया, तो अगर आप कैटेगरीज बना देना तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 5000 फी वाले उसके लिए है, उसके अंदर बीच में है, सर उसमें है, एक्ट में है ये। शहजाद सर हो गई आपकी बात खत्म। सर एक और गुजारिश है, Please. आपने जैसे सर अभी फरमाया कि स्कूल दोबारा बंद किए जा सकते हैं, तो मेरी सर इसमें रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आता है तो स्कूल को सपोर्ट करने के लिए, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कोई आप एक प्लान मुरतब कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त लोग बड़े क्राइसिस में हैं I स्कूल know. बंद होने की जगह I पे। know. आपको इसका बेहतर एहसास है। बिल्कुल, तो सर ये एक रिक्वेस्ट है लास्ट की। All right. Thank you very much, sir. We will. मेरी तो शहजाद? कोशिश है बंद ही ना हो इस दफ़ा। सोचते फ्रॉम सिटी 42 जी माइक लीजिएगा शहजाद प्लीज। आ रही है आवाज़, बताओ शहजाद, ठीक है, वीडियो भी रिकॉर्ड अच्छा। सर आपने जिक्र किया कि 70% स्कूल ऐसे हैं जो 5000 की फीसें चार्ज करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब उन 70% स्कूलों पे बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। जो लैंड ऑनर्स हैं वो कह रहे हैं आप हमें किराया दे या यहाँ से निकले। इत्तेफाक हुआ था इस स्कूल में जाने का, तो वो आपसे गुजारिश कर रहे थे कि जिस तरह गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर्स के अंदर प्रोटेक्शन दी थी कि 2 माह किराया आपको वसूल नहीं करेंगे, टाइम देंगे जो स्कूल के स्कूल चलाने वाली मैनेजमेंट है उनको। तो अब भी सर अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई नोटिफिकेशन कर दे या ऑफिशियली कह दे कि जब तक स्कूल ऑपरेशनल नहीं होते आप स्कूल मैनेजमेंट को लैंड ऑनर जो है वो टाइम दे, तो इस तरह बहुत सारे स्कूल जो है वो बच जाएंगे, अदरवाइज सर वो बंद होने जा रहे हैं। अभी स्कूल खुलने लगे, सो लेट्स सी, अगर खुदा ना खास्ता में दोबारा बंद करने पड़े तो मैं उससे पहले ही अनाउंसमेंट कर दूंगा, उससे पहले ही कर दूंगा इंशाल्लाह। ये भी पॉइंट लिख लेना कि अगर हम खुदा ना खास्ता दोबारा तरह जाते हैं स्कूल वो आगे देना यार उनको जी अशरफ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 2 सीजन में कोरोना ने हिट किया, इनकी बात है, 3 इदारे बंद रहे, तो लोगों की आमदनियाँ भी बहुत कम हुई है, बेरोजगारी भी। ये बताइए कि इस दौरान कितने बच्चे स्कूल से आउट हुए, उनकी शरह क्या है? और दूसरा ये कि आपने इस 2.5 साल में जो आपकी हुकूमत रही है, इसमें आपने कितने नए इल्मी इदारे जो की सतह पे है उनके लिए काम किया है, कितने बने हैं, उनकी क्या पोजीशन है? जैसे आपका मोटिव है, आपकी जो वज़ीर आज़म है उसका विजन है कि तलीम को हमने फोकस मुक्त है करना ना मेरे बजाय सड़कों के, पुलों के, ब्रिजेस के। तो उसमें जरा ये बताइए कि 2.5 साल के अंदर पंजाब के अंदर कितने नए प्राइमरी स्कूल खुले, कितने बच्चे उसमें ऐड हुए हैं, या जो अगर छोड़ भी गए हैं ये कोरोना की वजह से और लोगों की आमदन कम हुई है उसकी वजह से बच्चों को उठा लिया गया है, उसकी शरह है? देखिए मैं आपको ये बताऊं, एक तो जितने बच्चे, क्योंकि अभी हम कोरोना के दरमियान में ही हैं और बच्चे स्कूलों से बिल्कुल एब्सोल्युटली ड्रॉप आउट हुए हैं, यहाँ बैठ के झूठ बोलना कि नहीं जी बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हुए, बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बच्चा स्कूल में से एक अच्छा नंबर एट द एंड ऑफ द डे। हम इस पे करने जा रहे हैं अभी पूरी कैंपेन, हम न्यू एडमिशन्स पे भी कैंपेन नहीं करने जा रहे हैं कि बच्चों को वापस स्कूल लेके आया जाए। इंशाल्लाह ताला हम 24 और 25 को ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं ताकि जी
سر ابھی شرح میں آپ کو دے اس لیے نہیں سکتا کیونکہ ہم نے سکولز جب دوبارہ ابھی کھلنے ہیں جو اس کے اوپر نہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو کانسٹنٹ کام ہو رہا ہے، مگر وہ نمبر میں آپ کو اس لیے ابھی دینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ میرے پاس ایگزیکٹ نمبر جو بالکل صحیح والا نمبر ہے اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا 2.5 سال کے اندر ہم نے کیا کیا، اگر آپ کو پوری رپورٹ دوں تو یہ میرے پاس ہے پوری رپورٹ، میں اس کے اوپر سے فوراً گزر جاتا ہوں، اٹ ول ٹیک می اباؤٹ 5 منٹس، میں جلدی جاؤں گا تاکہ کیونکہ رپورٹ بہت لمبی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے آ کے کی، ایک سب سے بڑا مسئلہ اسکولوں کے اندر جو تھا اسپیشلی گورنمنٹ اسکولز کے اندر وہ تھا ٹرانسفر کا مسئلہ۔ 4 لاکھ ٹیچر ہے، 4 لاکھ ٹیچر جو تھا وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے 50,000 سے رشوت دیتا تھا اور 1.5 لاکھ روپے تک دیتا تھا رشوت۔ یہ بنتی تھی تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپیہ سال کی کرپشن، 2.5 سے 3 ارب کی۔ صرف ٹرانسفر کروانے گیا ہوں، منسٹر بیٹھے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بیٹھے ہیں، رشوت دی، سفارشیں کروائیں، 2.5 ارب روپیہ پیسے ایکسچینج کرتے تھے سارے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں خرچا، ایک ایپ بنائی، اس کو ان کے فون پہ ڈال دیا، وہ گھر بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں اور گھر پہ ہی ان کے سی آر کوڈ ہی ہے نا، میں نے کیو آر کوڈ کے ساتھ ان کا گھر پہ ہی آ جاتا ہے ان کے آرڈرز۔ لوگوں کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ جس طرح ٹیچرز کو مس یوز کر رہے تھے، اسپیشلی فیمیل ٹیچرز کو کس طرح مس یوز کیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی، لوگ اتنی سخت پرابلم میں تھے اپنے ہائر اپ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب میں جاتا ہوں نا اربن رورل ایریاز کے اندر، لوگ میرا آگے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہماری بیٹیوں کی عزت بچا لی، آپ نے ہمارے خاندانوں کی عزت بچا لی، کہ ایک ایپ جس پہ 1 روپیہ نہیں لگا، کوئی بھی یہ کر سکتا تھا، کسی نے نہیں پہلے کیا۔ یہ ہمارا سب سے پہلا سٹیپ تھا آتے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں ایجوکیشن منسٹر نہیں، میں ٹرانسفر منسٹر ہوں، سارا وقت میرے آفس کے باہر لائن لگی ہوتی تھی، ٹرانسفر کر دیں ٹرانسفر کر دیں ٹرانسفر کر دیں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی وہ ہم نے کی، ہم نے کیونکہ اسکول نہیں تھے جو آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے سر، آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر آخری اسکول کب بنا تھا؟ 2011 کے اندر آخری اسکول بنا تھا۔ کسی نے ایجوکیشن پہ نہیں فوکس کیا، انہوں نے صرف کہا کہ جی بس جو سسٹم چل رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلا ریزن آپ یہ سوچیں، 70% بچے 5ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پنجاب میں، 70%، یہ نمبر آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ ایگزیکٹ نمبر۔ اب ہم نے کہا کہ فورن اسکول تو بن نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا یہی جو پرائمری اسکول، جو 36,000 پرائمری اسکول ہے، سب سے زیادہ پرائمری اسکول ہے، اسی کو دوپہر کو استعمال کیا جائے اور اس کو ایلیمنٹری بنا دیا جائے، جو ایلیمنٹری ہے اس کو سیکنڈری بنا دیا جائے۔ آپ یہ سوچیں، ہم نے انصاف آفٹرنون اسکول کھولا، 22,000 بچہ 3 مہینے میں واپس آ گیا، 22,000 بچہ۔ ایک کہنے کا نمبر ہے، ہم نے تو صرف کچھ کھول کے دیکھ لیا ٹیسٹنگ کے لیے کہ جی اس میں کوئی واپس آتا بھی ہے کہ نہیں۔ جب بچے واپس آنا شروع ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم 900 کھولنے جا رہے ہیں اس سال۔ یہ تو کورونا نے ساری چیزیں اوپر نیچے کی ہوئی، نہیں تو ہمارے سارے پروگرام شروع ہو چکے ہوئے تھے۔ سو انصاف آفٹرنون اسکول کا یہ ہمیں فائدہ ہوا کہ نہ ہمیں بلڈنگ کا ویٹ کرنا پڑا، ہم نے وہی ٹیچر جو صبح پڑھا رہا تھا وہ جاتا ہے ٹیوشن پڑھانے، ہم نے اسی کو 18,000 روپیہ دے دیا آنریریم، اس نے کہا جی میں دوپہر کو پڑھا دوں گا، اور ہم 18,000 روپیہ آنریریم دے کے اس اسکول کو سارے دن کے لیے چلا دیا۔ بلڈنگ بھی وہی، لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو ہم نے اس طرح بھی امپرووڈ دیٹ۔ اس کے بعد ابھی ہم نے یہ، آپ سوچیں کہ پچھلے مارچ کرنا تھا، 1 سال ہمیں اس پہ لگ گیا، ڈیلے ہو گیا کورونا کی وجہ سے۔ لاہور میں آپ سوچیں کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نمبر ہے مجھے بتا دیں، ایک نمبر بتا دیں، کوئی 10,000 20,000 50,000؟ لاہور جیسے شہر میں 3 لاکھ سے اوپر بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، 3 لاکھ۔ لاہور ایک ہب ہے جہاں پہ اسکولوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور 100 اسکول ہم ایسی جگہ پہ کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پرائمری، جہاں پہ اسکول ہے ہی نہیں، نہ گورنمنٹ نہ پرائیویٹ، 100 ایسی لوکیشنز ہیں لاہور کے اندر۔ اب اس پہ ہم چینج کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ حکومت کے پرانے جو سٹائل ہے اسی پہ چلتے رہیں، ایک سکول بنتا تقریباً 2-3 کروڑ روپے کا، 4 کروڑ روپے کا، ہم 21 کروڑ روپے کے اندر 100 سکول کھول رہے ہیں۔ 21 کروڑ رینٹ والی بلڈنگ لے کے آپ کیوں نہیں کھول سکتے بھائی؟ اگر پرائیویٹ سکول کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے 10-10 کنال جگہ جا کے خریدیں، پھر اوپر بلڈنگ بنائیں، 3 سال تک سکول ہی نہیں کھول سکتا۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ 100 سکول جیسے ہی سسٹم دوبارہ نارمل شروع ہوتا ہے، 90 ڈیز کے اندر یہ 100 سکول کھلیں گے،
प्राइमरी 21 करोड़ रुपया। गवर्नमेंट के स्कूल खोले जाएं तो आप फिर हिसाब लगा लें 103 करोड़ के साथ, तो 300 करोड़ पे तो वहीं चले गए हम सीधा, ठीक है जी, 3 अरब पे सॉरी चले गए। सो इसलिए 90 डेज के अंदर हम 100 स्कूल आपको खोल के इसलिए दिखाएंगे, अगर हमने माइंडसेट चेंज करना है अपना। हम उस माइंडसेट पे नहीं रह सकते जो पिछला माइंडसेट था। 3-3 साल लग रहे हैं स्कूल बनाने के अंदर, करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं, 10-10 केनाल के ऊपर स्कूल बनाए में, जरूरत नहीं है। जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हैं तो जिस तरह का सिस्टम चल रहा है उसको सिर्फ बेहतर करके कोशिश करें, वहां पे मैक्सिमम बच्चों को स्कूल लेके आया जा सके। इसके बाद हमने मील प्रोग्राम शुरू किया जी, क्योंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच में उन्होंने जब बच्चे का एक ब्रेन दिखाया था कि हमारी कितनी स्टंटिंग हो रही है, हमने ये, बल्कि मैं तो आप लोगों से भी ये कहूंगा, आगे हम एक प्रोग्राम अभी इंशाअल्लाह ताला विद इन 30 to 60 डेज लॉन्च करने लगे, ओन अ पब्लिक स्कूल या अडॉप्ट अ पब्लिक स्कूल। इसी तरह हमारे पास लोग आए, उन्होंने कहा जी हम 100 स्कूलों को बच्चों को 1 फ्री मील देंगे। मुझे सिर्फ 300 लोग चाहिए पंजाब के अंदर, 300 जो कि 100 स्कूल ले लें और बच्चों को 1 मील दे दें, जो हमारा प्राइमरी स्कूल का। सो ये हमारा प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो 1 मील हमने 100 अभी 10 स्कूलों में शुरू किया था, तो कोरोना आ गया, बंद हो गया, अब हम 100 पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला जब दोबारा खुलेगा। सो 1 मील इतना जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते कि वो 1 मील कितना फर्क उस बच्चे की जिंदगी में डालेगा और उसकी तालीम में कितना वो फर्क डालेगा। फिर हम लेकर आए उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सब मेरे पीछे पड़ गए कि जी ये तो हमें बैकवर्ड लेके जा रहा है, ये हमें। जब तक आपको आपकी जबान में बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे उसको नहीं समझ आएगी। हम कॉम्प्लेक्स नेशन है, जो अंग्रेजी बोलते हैं हम उससे बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं कि वो इसको अंग्रेजी बोल रहा है, इसकी बात सुन। उर्दू में हम बच्चों को जब तक नहीं बताएंगे ना कि 1+1 क्या होता है, 2+5 क्या होता है, ये साइंस का क्या इसका मतलब है, ये जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा तभी तो रोड लर्निंग हो रही है। आप उसको एक फॉरेन जबान के अंदर समझा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर, जो 23 घंटे दिन में उसके साथ कोई बोल ही नहीं रहा, ना उसके माँ, ना बाप, ना रिश्तेदार, ना बहन, ना भाई, ना दोस्त। 1 घंटा वो दिन में पढ़ रहा है इंग्लिश में, और आप कह रहे हैं नहीं तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अंग्रेजी के अंदर। वो कहता है इसको छोड़ो, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं रट्टा लगाना शुरू कर। सो ये बड़ी जरूरी चीज थी करनी। बड़ी इसमें पहले मेरे ऊपर बैशिंग हुई अखबारों में, मीडिया पे, उसके बाद उन्होंने फिर तारीफें की कि नहीं जी दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट मेक्स सेंस। असेसमेंट पॉलिसी हमने चेंज की। आपको पता है कि एक 5वीं का और 8वीं का एग्जाम होता है, आपने भी जरूर दिया होगा अपने टाइम में। 5वीं का एग्जाम हमने क्यों खत्म किया? टीचर की जो एवेल्युएशन है वो एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर थी। अगर 5 साल के तो टीचर्स ने कुछ चीटिंग करानी शुरू कर दी कि अच्छे रिजल्ट आए। अब 10 साल का बच्चा अगर ये देख रहा है कि मेरा टीचर मुझे चीटिंग करा रहा है, तो चीटिंग ठीक है, उसने ये समझ लिया है, जिंदगी में हमने उसको सिखा दिया 10 साल की उम्र में कि चीटिंग ठीक है, सो तुम चीटिंग करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आप 10 साल के बच्चे को करप्ट बनाने जा रहे हैं और उसको 10 साल के बच्चे का जहन खराब करने जा रहे हैं कि चीटिंग ठीक है। इसलिए हमने कहा एग्जाम खत्म करो, अपनी असेसमेंट बेहतर करो। सो दिस इज व्हाट वी डिड। हमने पिछले साल किया, इस साल भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। 3 मिलियन से ज्यादा हमने दरख्त लगाए स्कूलों के अंदर, नए 3.16 मिलियन है, 3 मिलियन ज्यादा इंशाल्लाह ताला और शुरू करेंगे। फिर जब ये कोविड आया, हमने तालीम घर शुरू किया। तालीम घर था कि टीवी पे सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, क्योंकि सब बच्चों के पास एक्सेस नहीं है लैपटॉप्स की और इन चीज़ों की और फोन्स की और सब। सो हमने क्लासेस शुरू की 8 to 2 टीवी पे चलती थी। हमें डिफरेंट पंजाब के एरिया से लोगों ने अपने बच्चों की तस्वीरें भेजी जो बैठ के टीवी पे देख रहे थे, और ये लोकल केबल चैनल्स पे हमने चलवाया, जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर उन केबल ऑपरेटर्स का जिन्होंने हमें फ्री चैनल दिया। उन्होंने कहा जी एक फ्री हम आपको चैनल देते हैं, आप उस पर चलाएं। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू देम। प्राइवेट स्कूल्स का एक्ट है सर, इस पर बड़ी देर से मेहनत हो रही है और बड़ी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फाइनल फेज में आ गया, इसको हम असेंबली भी लेके जाएंगे और पहले कैबिनेट से करवाएंगे, फिर असेंबली लेके जाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें, प्राइवेट स्कूल ओनर्स बहुत सख्त टेंशन में है कि मैं पता नहीं क्या चीज़ लेकर आ रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब चीज़ें बैठ के टेबल पे रिजॉल्व की जाएंगी, एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि सबको बहुत घबराहट हो रही है कि ये प्राइवेट स्कूल्स एक्ट ये क्या आ रहा है। इसके साथ ही हम टीचर्स लाइसेंसिंग भी लेकर आ रहे हैं। वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल से, या उन मुल्कों में से है
कुछ मुल्कों में से, जहां पे डॉक्टर का लाइसेंस है, लॉयर का लाइसेंस है, टीचर का लाइसेंस क्यों नहीं? आई मीन यहां से टीचर जानने वाले गए मुल्क से बाहर, दुबई गए, उन्होंने कहा जी कि आप तो नहीं पढ़ा सकते। वो 10-10 साल यहाँ पे ग्रामर स्कूल वगैरह ये बाकी अच्छे जो एलीट स्कूल हैं उन्होंने पढ़ा के गए और उन्होंने कहा नहीं आप नहीं पढ़ा सकते, आपके पास लाइसेंस ही नहीं। सो ये सोचें कि लोग बाहर जाके आपके पढ़ा नहीं सकते कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त ये लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है। पहली दफा हमने सारे प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दी। हर प्राइवेट स्कूल इस वक्त जाके बजाय रिश्वतें दें, फाइलें चलवाएं, ये करें वो करें, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन जाएं, अप्लाई करें, आप अपनी फी जमा करवाएं, जो क्राइटेरिया वो आप पूरा कर रहे हैं, आपका स्कूल रजिस्टर हो जाएगा। वहां से हमारे लोग जाएंगे, वो जाके देखेंगे कि जो क्राइटेरिया भरा है जी वो ठीक है, एंड विल बी रजिस्टर्ड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्योंकि हमने कच्ची को या नर्सरी या कच्ची जो उसको हमने कभी अटेंशन नहीं दी थी। हमने पहली दफा इतनी जबरदस्त एक किताब बनवाई जिसमें डिफरेंट 12 से 13 डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में ना एक तो ये बड़ा है कि जब हम फ्री चीज देते हैं ना तो हम कहते हैं बिल्कुल लो क्वालिटी की दो। मैंने बच्चों के लिए ये किताब बनवाई और इंटरनेशनल लेवल की किताब है, हमने फ्री दी है स्कूलों के अंदर, ईसी अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम्स को। आप काश के मेरे पास अभी होती, मैं आपको दिखाता। आप खुद कहते हैं कि वाकई में नंबर 1 चीज हमने अपने बच्चों को दी, नंबर 1। सो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर करने के लिए, वो उर्दू भी है उसके अंदर, इंग्लिश भी है, दोनों चीजें, और उसमें अरबिक भी है। सो उसमें हमने 3 लैंग्वेजेस रखी। इट्स एन एक्सेलेंट बुक। इसके बाद जी हम कोई 1000 साइंस लैब बनाने जा रहे हैं, हमारी खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला बाय नेक्स्ट मंथ। 1000 हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं, 2000 से ज्यादा हमने क्लासरूम्स बनाए हैं नए, एंड 400 लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, हम दोबारा उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट, ताकि बच्चों को पता लगे सिर्फ वहां दीवारों पे किताबें नहीं है, वहां पे डिजिटल लाइब्रेरीज भी होंगी। बोथ विल बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन। ये सारे जो मैंने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट बता रहा हूं, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ सारे खत्म हो जाने हैं। लैब्स हो गई, ये हो गई, IT लैब्स हो गई, एंड अच्छा हुआ ना मैं ये चीज साथ ले आया। फिर हमने अबाउट 1200 स्कूल, हमने 1227 स्कूल एग्जैक्ट नंबर है, हमने अपग्रेड किए। इसकी वजह से 1 लाख बच्चा वापस स्कूलों में आ गया। जो प्राइमरी था, जगह थी, सब चीजें हमने कमरे ऐड किए, उसको हमने एलिमेंट्री बना दिया, एलिमेंट्री को हमने सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी 1227 स्कूल्स को हमने अपग्रेड किया, जिसकी वजह से 1 लाख बच्चा वापस स्कूलों में आ गया। क्योंकि वो जा रहे थे, क्योंकि स्कूल अवेलेबल नहीं था करीब, वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे। और ये मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम गवर्नमेंट को टीका लगाना चाहते ना, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो 16 अरब रुपए का टीका था, जो कि कोई भी लगा सकता था, मगर हमने इस पर खुद अपने डिपार्टमेंट ने काम करके सब चीजें करके वी सेव्ड 16 बिलियन रुपीज, 16 अरब रुपया हमने बचाया। इसके बाद जी मैं आपको बस मैं चाहता हूं बाय द एंड ऑफ आवर टर्म इंशाल्लाह ताला ये सारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फोन पे होना चाहिए, आपके लैपटॉप पे होना चाहिए, आपके जौन से भी डिवाइस उस पे होना चाहिए। आपने कोई चीज आपको पता करनी हो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कोई बच्चा, कोई असेसमेंट, कोई टीचर, एनीथिंग, क्या फायदा इसका? 2 चीजें। जब आपने कोई फैसला करना होता है ना जिंदगी में, तो आपके पास डाटा होना चाहिए। जब हम आए हैं ना, आप ये सोचें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, कहते जी PITB जाएं, जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। 2018 में ये हाल, 2018 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब डज नॉट हैव वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो टेक्नोलॉजी तो भूल जाए ना बिल्कुल। सो अब हम काफी चीजों में टेक्नोलॉजी ले आए और लेकर आ रहे हैं। सो हमारा टारगेट एट द एंड ऑफ द डे, एक हमारे पास डाटा और सही फैसले करने के लिए, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी आएगी, 2 नंबरी सारी खत्म होगी। जो करप्शन है सारी, उसको खत्म आप कभी भी नहीं कर सकते, आप मिनिमाइज कर सकते हैं सिर्फ। सो मेरा ये है कि इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस टर्म कि हम इसके अंदर डाटा भी हमारे पास एक्यूरेट हो, क्योंकि हमें अभी तक यही नहीं पता कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमें ये नहीं पता पंजाब में कि अभी तक आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने, एग्जैक्ट नंबर आपको कोई नहीं बता सकता। कोई कहता है 50 लाख है, कोई कहता है 30 लाख है, कोई कहता है 1 करोड़ है। जहां पे हमारा नंबर इस वक्त आ रहा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी भी है,
वो 50 लाख के करीब करीब और 75 लाख के करीब करीब उसके दरमियान में कहीं चल रहा है। सो इंशाल्लाह ताला ये पूरा डिपार्टमेंट जो होगा, ये इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है और होगा, फ़ोन पे होगा आपके, एवरीथिंग दैट कैन बी। इंसाफ एकेडमी जो हम बनाने जा रहे हैं, मैं उसका ज़रा आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये एकेडमी कल्चर है ना, जो सारा तबाह कर दिया इसने हमारे बच्चों को। क्यों तबाह किया है? क्योंकि टीचर कहता है सुबह क्लास में नहीं पढ़ाना, शाम को मेरे पास आ जाना, मैं शाम को तुम्हें अपनी एकेडमी में पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, सुबह नहीं पढ़ा रहे, शाम को पैसे ले रहे हैं, शाम को भी जो पढ़ा रहे हैं पता नहीं किस किस्म का पढ़ा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो हम ये एकेडमी ऐसी बनाने चाह रहे हैं, आपने पता नहीं सुना हुआ है उसका कि नहीं, वो खान एकेडमी एक अमेरिका में चलती है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं ज़रा उनके पूरे काम को। और फ्री लेक्चर्स होंगे, जिस तरह मैं बैठा हूं और मेरा बच्चा साथ बैठा, मैं कहूँगा फ़ोन पे, टीवी पे, किसी चीज़ पे भी लेक्चर लगाओ, हर लेक्चर के बाद एक क्विज होगा, क्विज बच्चा पास नहीं करता, अच्छा दोबारा पढ़ो। फ्री लेक्चर आप 10 दफ़ा सुन सकते हैं, आप 100 दफ़ा सुन सकते हैं। एकेडमी जा रहे हैं, आप सिर्फ एक लेक्चर मिलेगा आपको, पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे, हर रोज़ एक ही लेक्चर मिलना है या 2 मिलने हैं, जो भी। आप उसी टॉपिक के ऊपर 100 दफ़ा फ्री लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आपको वहां प्रॉब्लम आ रही है तो हम लाइव लेक्चर्स भी होंगे, और लाइव जो होंगे ना, वो होंगे लाइव जो होंगे इंटरेक्शन वाले होंगे। सो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, लाइव लेक्चर भी है, और क्विजेस भी है। पूरा हमारे पास एक असेसमेंट बैंक होगा। सो इसलिए इंशाल्लाह ताला आप देखना, ये फ्यूचर है, ये अभी हम शुरू करेंगे, उस पर काम हो रहा है। इट विल टेक अस अबाउट 12 मंथ्स टू डू दिस, मगर ये फ्यूचर है कि आप अपने बच्चे की बैठ के इवैल्यूएशन साथ बैठ के कर सकेंगे। आप अपना काम करते रहें, उसका क्विज देखें, क्विज का रिजल्ट आपके सामने, नहीं ठीक है दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। मेरे ख्याल से जबरदस्त चीज होगी, ये फ्यूचर है। अब ये किताब है जो मैं आपको बता रहा था, जो बच्चों को हमने दी, आप देखें कि ऐसी किताब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल में पहले कभी नहीं दी गई होगी। और इसके अंदर अगर आप देखें, ये देखें, काउंटिंग, फ्लैग्स, शेप्स एंड कलर्स, और ये सारे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए अंदर। और उसके साथ साथ ये देखें आप, अंदर हर चीज की शेप है और हर चीज की डिस्क्रिप्शन है और कलर्ड। और आप ये देखें कि इस किताब को होता कुछ नहीं। ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल इस तरह कर दिया ना, ये देखें वापस उसी तरह हो जाएगी, उसको 60 सेकंड्स लगते हैं वापस उसी शेप में आएगी। सो इट्स आई मीन देखें, आपने चीज करनी है, चीज देनी है, मेरे ख्याल से बेहतरीन हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। हम सब की जगह इन बच्चों ने बैठे होना, हम सब की जगह, सिर्फ मेरी जगह नहीं, हम सब की जगह। So I think we need to take care of them and we need to do the best things for them. I think इसके बाद और कुछ है? That's it. So सर, आपके सवाल का जवाब जितनी डिटेल में मैं दे सक रहा था मैंने दे दिया है। मेरे ख्याल से बाकी बोर हो गए, so इसलिए, मगर मैं नहीं चाह रहा था कि जी 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 ओ हाँ हाँ हाँ, वो याद नहीं रही, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएगा कि मिसिंग फैसिलिटी जी जी, एक बहुत अहम इशू है। ठीक है, बहुत सारी जो है वो चीजें फेस कर रहे हैं स्कूल्स वाले भी, हाँ हाँ, क्योंकि डीजी खान और मियां वाली को जो फंड्स जारी हुए, वहाँ पे जो कुछ जो है वो क्लासरूम्स बने, तो अभी भी हम लोग जो है वो स्कूल्स का विजिट करते हैं, अभी भी बच्चे सिक्योरिटी गार्ड्स के जो है वो फराइज अंजाम दे रहे हैं और टीचर्स क्लर्क की जगह पे काम कर रहे हैं। स्कूल के अंदर सारी चीजें जो है वो अभी भी चल रही हैं, तो मिसिंग फैसिलिटीज कब दूर होंगी, टीचर्स को बकायदा सिक्योरिटी गार्ड कब मिलेंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। देखें तकरीबन 30 से 32 हज़ार चाहिए ये दर्जा चहारम के जो हैं गार्ड्स, नायब कासिद और ये सब। इसी तरह अबाउट 50,000 इससे प्लस हमें टीचर्स चाहिए। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि सम टाइम दिस ईयर इन चीज़ों को शुरू किया जाए। ये जो सिर्फ दूसरी मिसिंग फैसिलिटीज़ और होती हैं, ये वाली जो आप बात करें ये एम्प्लॉइज़ की है। मेरी कोशिश है कि इस साल इंशाल्लाह ताला इनको एटलीस्ट शुरू कर दिया जाए, हम फेज़ वाइज कर लें, एकदम नहीं आप कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। सो अभी हमने बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया, मगर इसको इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे इस पे काम हो रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि इसको हम ज़रा विल टेक अ बिगर जंप ऑन इट। सो इसलिए ठीक है, थैंक यू। इब्राहिम साहब है जी, हमारे बोर्ड मेंबर है हेल्थ चेक। सर, ये अभी आपने एक बात कही कि आपने वो एक मील सिस्टम शुरू किया है। जी जी जी, इत्तेफाक से मेरा भी इन लोगों के साथ आपके साथ MOU हुआ है। अच्छा ज़बरदस्त। हमने उनके साथ मिल के आपके लिए फ्री आई स्कैनिंग
अच्छा अच्छा हम करें। ज़बरदस्त। तो हमने पहले एक दफ़ा हमें ना स्कूल्स मिले थे गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट स्कूल्स, जिसमें हम लोगों ने टीचर्स की फीस और गुंजाइश मौजूद है। जो बात आपने सबसे पहले की कि बिल्डिंग मौजूद है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ कमरे भी बना के दिए, उन लोगों को टीचर्स भी हायर करके दिए। जो सैलरी गवर्नमेंट दे रही थी, जो एक्सटेंशन हुई, वो बर्डन जो है वो हमने प्राइवेट सेक्टर ने बेयर किया, ठीक है लेकिन वो रुक गया। तो मेरी प्रपोजल है कि आप इसको ज़रा दोबारा से देखिए। सर, मैं नया प्रोग्राम पूरा इसका लेकर आ रहा हूँ हमारी इंशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, क्योंकि अब मेरे अपनी जो है, जो हम दोस्त मिलके भी एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं ठीक। हमारे पास, और हम 200-250 रुपये फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि फ्री में आपने कहा लोग पसंद नहीं करते। तो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व कर लें। पक्की बात है। दूसरा सर, एक छोटी सी गुजारिश ये थी कि दानिश स्कूल का क्या बना है? अच्छा हाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मैं मैंने उसका देखा हुआ है सेटअप, हमने बड़ी चेंज किया उसको, मैं आपको बताता हूँ। उसमें अगर आपने कुछ बेहतरी की है, बिल्कुल, प्राइवेट बिल्कुल, सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो जितने बड़े वो प्रेमिसेस हैं उससे आप वहाँ पे बहुत बड़ा लेवल डेवलप कर सकते हैं। मैं दानिश का आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमने रैशनलाइजेशन की, उनके जो धड़ाधड़ एम्प्लॉयज़ भरे हुए थे। आप सोचें हमने 50 करोड़ रुपया एक साल का बचाया। 50 करोड़ कहने की बात, एजुकेशन सिस्टम में 50 करोड़ आप निकाल के कितनी जगहों पे और लगा सकते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को रैशनलाइज करने के लिए। उसके बाद हमने दानिश स्कूल इन्होंने रखा हुआ था जी सिर्फ के बोर्डिंग के होंगे, हमने सबके लिए खोल दिया। 2000 रुपया फीस हमने रख दी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, अच्छे बनाए हुए हैं सब चीज़ें। सो हमने कहा 2000 रुपया फीस, बड़ी नॉमिनल फीस है, वो हमने वहाँ पे रख दी है। और हमने कहा कि सब आए इसमें, ये नहीं कि सिर्फ बोर्डिंग स्कूल वाले होंगे, हर एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वहाँ की, अगर कोई करीब रहता है। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जिन जगहों पे ये बने हुए हैं ना, हमने भी सोचा इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि बाउंड्री वॉल्स तक नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है कहीं पर। पता नहीं इतना पागलपन करने की ज़रूरत क्या थी, मगर आई मीन 20-20 मुरब्बे में बना हुआ है। आई मीन 20 मुरब्बे के अंदर, 15 मुरब्बे के अंदर एक स्कूल बनाना, ये पागलों वाला काम है कि नहीं? बिल्कुल 40-40 बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए तभी तो हमने खोला बाकियों के लिए। और वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकते आप, नहीं तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके ये दे दें किसी को कि जो उससे आपको इनकम आनी शुरू हो जाए। वो ऐसे गुंजान इलाकों में बनाए हुए हैं जहाँ पे गिनती के बच्चे हैं, और ऊपर से आप जगह भी इतनी ज़्यादा है, और मगर वो किसी कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ है कोई नहीं इर्द गिर्द। सो इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, मैं ज़रूर बताएं प्लीज़। मैं तो जो दानिश स्कूल के साथ कर सकता हूँ तो मैंने कर दिया सारी चीज़ें। मैं यही आपको कह रहा था कि मेरा इत्तेफाक हुआ है चिश्तिया जैसे शहर में बिल्कुल, इतना बड़ा स्कूल कितना बड़ा है, अब आपने एंड नहीं होता। मैं देख के आया हूं, और भी बहुत सारे देखे मैंने, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे, हमने इसमें प्रपोजल। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस स्कूल को किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करके, आपको शायद उसमें अर्निंग ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहले दिन ठीक। अर्निंग हो जाएगी, आपको अर्निंग ना हो, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करवाए जा सकते हैं, बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है, वहाँ राइडिंग और ऐसी फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती है प्राइवेट सेक्टर में। जो बच्चे से तो शायद आप उसमें चेक एंड बैलेंस बड़ा सख्त करना पड़ेगा, आपको वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, और ये हो सकता है। लिखो जी, ये दानिश का अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्या अगर हम बड़ा ऐसी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर की CSR में, लोग इतना काम करना चाहते हैं, हम उसमें आपकी कौन लोग हैं वो मेरे पास भेजे ना, मैं तो थक गया हूँ। क्या क्या कभी क्या कहे, मैं सर खुद स्कूल चला रहा हूँ एक अब यूं करना है सर कि मैं जो ये अनाउंस कर रहा है ना, ये ओन अ पब्लिक स्कूल। अल्लाह की मेहरबानी से आप तक रसाई हो गई, आपको वो तक रसाई बड़ा नहीं, मेरे पास जितनी आसान मेरी रसाई है किसी की नहीं, मेरे ख्याल से किसी मिनिस्टर की नहीं। जब करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे मैं अनाउंस करूंगा सर ये पूरा प्रोग्राम। ऐसे लोग हैं जो ये करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको जिम्मेदार ठहरा देना इस प्रोग्राम के। मेरे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त। है। हमने अभी कराची में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी शुरू की है, कमिश्नर कराची ने उसका इनकी डिटेल्स अभी ले लो इस प्रोग्राम के लिए, ओन स्कूल प्रोग्राम अभी ले लो इनसे आके इधर। एक लाइब्रेरी शुरू की है, 1 रुपया नहीं गवर्नमेंट का लगा, सिर्फ जगह दी है और हमने सारा खुद बिल्ड कर दिया है। लोग किताब ले भी जाएं, वापस ना भी दें, हम नई किताब खुद रखते हैं। ठीक है, जबरदस्त सर। कार्ड दे दें अपना, मुझे अभी चाहिए। ये आ गया बंदा आपके